Hello and good morning to all of you students. How you all are doing? I hope you are well there. Okay, now before starting with today's lesson, let me talk about the previous assignments or homework that I have sent. Children, many of you are sending the work. I am glad about that. But still there are large number of students who are not submitting the work or they are submitting it very late. और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एक भी लेसन अभी तक सबमिट नहीं हुआ है. Please start doing your work and submit it regularly. Otherwise, I will have to message to your parents that you are not submitting the work. Okay. Now, let us start with today's lesson. As you can see on the slide, the name of the chapter is e-commerce or e-business. Fine. अब e-commerce से आप क्या समझते हैं? E alphabet stands for electronic. Okay, जैसे आपके होता है ईमेल. ईमेल मीन्स वो मैसेज या वो मेल जो हम किसी को भेजते हैं इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, एक ट्रेडिशनल लेटर की तरह नहीं होता कि हमने उसको लेटर बॉक्स में पोस्ट किया और फिर वो अपने जिसको हमने भेजा उस तक पहुंचेगा. We send our message electronically through computer or through mobile, and that message is known as email. So commerce, before starting with e-commerce, let us know what commerce is. Commerce means buying and selling of products or services. जब आप किसी चीज को या किसी सर्विस को आप खरीदते हैं या बेचते हैं, that is business और commerce. तो जब आप किसी चीज को इलेक्ट्रॉनिकली खरीदते और बेचते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू द शॉप. आप दुकान पे परचेजिंग के लिए नहीं जा रहे हैं. आप इलेक्ट्रॉनिकली अपने कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल पे कोई आइटम्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और उनको ऑर्डर कर रहे हैं. और जब वो आइटम आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कुछ टाइम बाद वो आइटम आप रिसीव कर लेते हैं. दिस इज नोन एज ई कॉमर्स. Okay, the definition goes here. E-commerce is also known as electronic commerce or internet commerce, reference to the buying and selling of goods or services and transfer of money and data online using the internet. इंटरनेट के माध्यम से आप आइटम्स को देखते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं, उनका ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनको आप उनके लिए आप मनी को सेंड करते हैं. मनी इज ऑल्सो सेंड इलेक्ट्रॉनिकली बाय electronic fund transfer or by card method. Fine. Now what are the properties of e-business? The properties of e-business are, इसकी कुछ properties हैं. First is time saving. E-commerce आपके लिए time saving होता है. Time saving कैसे है? अब आप समझिए, जैसे हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है शॉपिंग का. हम मार्केट जाएंगे, वहां पहले हम अपनी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह ढूंढते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, फिर हम शॉप पे जाएंगे. मे बी द शॉपकीपर इज बिजी विद सम अदर कस्टमर्स, सो वी विल हैव टू वेट. सो व्हाट वी डू इज we prefer e-business or e-commerce now. It is time saving. And how it is time saving? That at your home, in the comfort of your home, you just switch on your computer and you start connect with internet and you open such sites that allows you e-business. Okay, you select your products and you place your order. So this saves a lot of time. 24/7 support. What do you understand by this? 24 hours and 7 days means, as we know that traditionally the market is closed in the evening and you cannot go for shopping at night. But in e-business or e-commerce, you can do shopping any time of the day you want or as convenient to you. Access to wider range of products. Wider range of products means you can open the website of many companies or many e-selling sites are there. You can compare the products of various companies and you can select the best one for you. आप कई कंपनीज के प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं ऑनलाइन, उनको कंपेयर कर सकते हो और आपके लिए जो भी प्रोडक्ट बेस्ट है आप उसको परचेज कर सकते हो. Easy and less costly to start new business. अब जब हम कोई शॉप ओपन करते हैं या शॉप को हम कंस्ट्रक्शन कराना होता है या शॉप हम रेंट पे लेते हैं, तो दैट प्रूव्स टू बी वेरी वेरी कॉस्टली. जबकि ई कॉमर्स में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, so you can get associated with any company and you can be like you can have a small godown and you can keep their value, you can keep their objects or their items, and you have to have your website. So when the companies get the order, they will send it to you if you are located in a particular city from where the order has come, and you will be delivering the goods to the customer. Worldwide reach for all.
लाइक दिस यू कैन अंडरस्टैंड, वेबसाइट को आप कहीं से भी ओपन कर सकते हैं, किसी भी देश के प्रोडक्ट को आप देख सकते हैं और वहां से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी लोकल शॉप्स होती हैं, दे डू नॉट हैव वर्ल्ड वाइड रीच। ऑलराइट, उस शॉप में कौन जाएंगे? जो आसपास के लोग हैं, या थोड़ी भी दूर की शॉप कोई फेमस है तो हम वहां तक जा सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू द शॉप फ्रॉम अदर टाउन और अदर स्टेट और अदर कंट्री टू परचेज रेगुलरली। नो फिजिकल इंस्पेक्शन एंड डिलीवरी टेक्स टाइम। ये ई बिजनेस का एक फीचर है, नो फिजिकल इंस्पेक्शन। जब आप किसी शॉप पर होते हैं तो आप आइटम्स को खुद अपने हाथों से टच करके, उनको फील करके देख सकते हैं। जैसे हम कोई क्लोथ्स परचेज करने गए हैं, देन यू कैन फील देम, यू कैन सी देम, टच देम एंड यू कैन इवन ट्राई देम। बट ई बिजनेस में ये पॉसिबल नहीं होता। आपको उस क्लॉथ की, उसकी स्पेसिफिकेशंस आप रीड करोगे और उसी बेसिस पे आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। और डिलीवरी टेक्स टाइम। ई कॉमर्स से आपने कोई आइटम का ऑर्डर प्लेस किया तो वो इमीडिएटली आपके पास नहीं आता है। इट टेक्स टाइम फ्रॉम फ्यू डेज, मे बी अप टू अ वीक, डिपेंडिंग अपॉन फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। बट फ्रॉम अ लोकल शॉप you can go and you can purchase the goods, you can get them physically inspected, you can see them, you can touch them, and you can bring them home at once. Now this is a comparison between traditional business and e-commerce. Meaning physical exchange of goods and money. आप गुड्स परचेज करते हैं और उसका अमाउंट पे करते हैं, मनी पे करते हैं फिजिकली, मींस इन रियल। ई कॉमर्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड मनी। गुड्स का और मनी का इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज होता है, क्योंकि आप फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको मनी फिजिकली हैंड ओवर नहीं करेंगे, ना ही वो आपको गुड्स फिजिकली हैंड ओवर करेगा। सो इट विल टेक सम टाइम व्हेन द गुड्स रीच टू योर होम। एक्सेसिबिलिटी, ये हमने डिस्कस किया था। ट्रेडिशनल कॉमर्स में शॉप्स का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है। मोस्टली डे टाइम में शॉप्स ओपन रहती हैं, तो एक लिमिटेड टाइम के लिए आप परचेजिंग कर सकते हो। बट ई कॉमर्स 24/7, 24 घंटे 7 दिन आपके लिए ओपन रहती हैं। यू कैन परचेज एनी टाइम यू वांट। फिजिकल इंस्पेक्शन, आप गुड्स का फिजिकल इंस्पेक्शन ट्रेडिशनली में कर सकते हो, बट ई कॉमर्स में आप परचेज होने के बाद जब वो गुड आपके हाउस पे डिलीवर हो जाएंगी तभी आप उनको इंस्पेक्ट कर सकते हो। कस्टमर इंटरेक्शन, आप फेस टू फेस शॉपकीपर से बात करते हो, लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे, वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हो। आपके सामने कोई शॉपकीपर या कोई गुड्स का ओनर या इंचार्ज आपके सामने नहीं होता है। आप सिर्फ उसकी फोटो देख सकते हो, उसके बारे में रीड कर सकते हो और ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। बिजनेस का स्कोप ट्रेडिशनल लिमिटेड एरिया में होगा। आप समझ सकते हैं, एक शॉप है, लिमिटेड एरिया में ही उसके कस्टमर्स होंगे, लेकिन ई कॉमर्स का अप्रोच और या स्कोप जो है वर्ल्ड वाइड होगा। पेमेंट, ट्रेडिशनल कॉमर्स में आप कार्ड, कैश, चेक से कर सकते हैं। इसमें भी आप कार्ड से या फंड ट्रांसफर, लेकिन कैश से पेमेंट सिर्फ ट्रेडिशनली और या शॉप पे ही होगा। बाकी ई कॉमर्स में कैश से पेमेंट पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन होता है, जब आपके पास गुड्स डिलीवर हो जाए तब आप कैश पेमेंट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट डन इमीडिएटली। डिलीवरी ऑफ गुड्स, ट्रेडिशनली आप इंस्टेंटली घर ला सकते हैं गुड्स, बट ई कॉमर्स इट टेक्स टाइम। दिस इज आवर ई कॉमर्स चेन। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया ऑनलाइन स्टोर में, प्रोडक्ट्स एंड ऑफर्स उसने रीड किए, उसने सेलेक्ट किए, उसके लिए पेमेंट किया कार्ड से सेफली, देन वेयर हाउस से या गोडाउन से वो गुड्स डिलीवर होंगी। तो एक स्टेट से या एक सिटी से दूसरे सिटी वो डिलीवर की जाएंगी और आपके हाउस पे पहुंचा दी जाएंगी। दिस इज द, लाइक यू कैन से, ई कॉमर्स चेन। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं ई कॉमर्स के। क्या एडवांटेजेस हैं? ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इजी एंड लो कॉस्ट एक्सपेंशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे शहरों तक अपनी रीच बढ़ानी है तो उसको सिर्फ वेबसाइट में डिलीवरी के लिए जो उसने सिटीज मेंशन किए हैं या अपने जो आपने उसके गोडाउन्स हैं, सिर्फ वो आप दूसरे शहरों तक एक्सपेंड करने हैं। सो इट इज रिलेटिवली इजी एंड लो कॉस्ट एज कंपैरिजन टू ओपनिंग ऑफ अ शॉप। पेपर वर्क काफी रिड्यूस हो जाता है और कंपनी की ब्रांड इमेज, कंपनी की जो इमेज है वो भी काफी इंप्रूव होती है। कस्टमर्स के लिए क्या एडवांटेज होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज, 24 घंटे आपके लिए शॉपिंग अवेलेबल है। आप वेबसाइट ओपन कीजिए, अपने आइटम सेलेक्ट कीजिए और ऑर्डर प्लेस कीजिए। डिस्काउंट आपको ऑफर होता है। हमने देखा है, वी नो दैट ऑनलाइन वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट्स, दे गिव अ लॉट ऑफ डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत है।
अब कुछ एडवांटेज सोसाइटी के लिए हैं, लाइक लेस कॉस्ट एंड लेस ट्रैफिक ऑन रोड। रोड पे ट्रैफिक कम क्यों होगा? जब ज्यादातर लोग शॉपिंग करने के लिए शॉप पे नहीं जाएंगे, वो अपने घर से ही शॉपिंग कर सकते हैं, सो देयर विल बी लेस ट्रैफिक ऑन रोड एंड इट विल प्रूव लेस कॉस्टली, क्योंकि आप शॉप पे जाएंगे, आप व्हीकल पे जाएंगे, व्हीकल का वेयर एंड टेयर होता है, पेट्रोल का कंजम्पशन है, सो कॉस्ट इज रिड्यूस्ड एंड देयर इज लेस ट्रैफिक एंड पोल्यूशन ऑन रोड। इजी गवर्नमेंट सर्विसेज एंड मोर रीच। ई कॉमर्स के थ्रू गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, उसकी सर्विसेज हैं, वो भी ज्यादा लोगों तक इजीली पहुंचाई जा सकती हैं, बजाय हर जगह ऑफिस ओपन करने के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक टेक्निकल डिसएडवांटेज, सिस्टम सिक्योरिटी और नेटवर्क इश्यूज होते हैं। हमने देखा है विलेजेस में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी शहरों में है, सो यू गेट नेटवर्क इश्यूज। और सिस्टम सिक्योरिटी, लाइक many a times we listen that system has been hacked, और जो आपकी ऑनलाइन पेमेंट है, दैट इज ऑल्सो रिस्की इफ यू आर नॉट टेकिंग अप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी इश्यूज होते हैं। इनिशियल टाइम कॉस्ट कई बार ज्यादा हो जाती है वेबसाइट के डेवलपमेंट की, और बार बार उसमें चेंजेस होते हैं। ट्रस्ट इश्यू होते हैं, बिकॉज ऑन शॉपकीपर यू नो द शॉपकीपर पर्सनली, बट इन ऑनलाइन शॉपिंग यू आर नॉट सीइंग द पर्सन फेस टू फेस एंड यू कैन नॉट फिजिकली टच एंड इंस्पेक्ट द गुड्स। कुछ ई कॉमर्स मोड्स हैं, लाइक B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी गुड्स बाय और सेल करे। बिजनेस टू कंज्यूमर, कोई कंपनी डायरेक्ट कस्टमर्स को, लाइक Amazon, कस्टमर्स को अपनी गुड्स और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करती हैं। कंज्यूमर टू कंज्यूमर, जब लोग डायरेक्टली अपनी चीज किसी वेबसाइट पे सेल करते हैं, लाइक OLX, यू नो द ऑप्शन साइट। कंज्यूमर टू बिजनेस, people offer product and service to companies, like freelancing, like a person says I am capable of doing this work, जो भी कंपनी उसको हायर करना चाहे वो अप्रोप्रिएट फी देके उसको हायर कर सकती है। सिमिलरली और भी इसमें ई कॉमर्स मोड्स हैं, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस एंड गवर्नमेंट टू सिटीजन, लाइक यू नो द ई-मित्र shops or e-miत्र centers which gives your facility for passport, ration and other Aadhaar card etc. This is the facility provided by the government. Now कुछ कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग प्लान फॉर स्मॉल बिजनेस। आपको बिजनेस की डिस्क्रिप्शन की समझ होनी चाहिए, लाइक किस प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना है, किस इंडस्ट्री को वो केटर करता है, आपके टारगेट कस्टमर्स कौन है, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, और उनके पास किस मीडियम से आप पहुंच सकते हैं। लाइक यू हैव विलेजर्स एज योर कस्टमर, सो यू कैन नॉट रिलाई ओनली ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग, यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ फिजिकल मार्केटिंग और पब्लिक मार्केटिंग ऑल्सो। आपको अपना कंपटीशन देखना है कि आपके जो नियर बाय शॉप्स हैं या नियर बाय जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो क्या टैक्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, और आपको उन टैक्टिक्स से बेटर परफॉर्म करना है। स्वॉट एनालिसिस, आपको अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, जो भी आपके बिजनेस के लिए थ्रेट्स हैं वो देखने हैं, उनको एनालाइज करके आपको अपने लिए जो बेस्ट है वो डिसाइड करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाना है। लिस्ट द गोल्स एंड टैक्टिक्स, जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं और एक्सपेंशन मीडियम है, एडवर्टाइजमेंट है, आपको उनकी एक लिस्ट बनानी चाहिए। एंड यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू थिंक ऑफ वेज हाउ टू परफॉर्म बेटर, हाउ टू टेक द कंपटीशन, हाउ टू विन इन द कंपटीशन फ्रॉम द अदर शॉपकीपर्स और अदर बिजनेस। क्रिएट योर बजट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू डिसाइड दैट व्हाट योर बजट इज। आपके बजट मीन्स आपके पास अमाउंट कितना है, आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मनी स्पेंड कर सकते हैं। It should be like you should not spend all the money that you have. You should keep some amount safe with you and start your business. And you should know the interest and the thing that you can do. Okay, children. I hope the topic was simple. Please see this video again if you are unable to understand. I am sure by seeing it again you are going to follow it. Please do the lesson that I am sending along with this, and also send the previous lessons if you have completed them. Wish you all the best. Stay home, stay safe, and hope that our schools open soon. Thank you all.